My voice is audible, right? Yes, ma'am. Okay. We had started off this chapter that is small business and entrepreneurship skills. And it's a very interesting chapter, in fact, because that's going to really help you out, all of you, in the later stages if you want to go for entrepreneurship at any time. Anytime if you feel ki yes, I want to, because being from the commerce background, it is going to help you out. We had learned what is the meaning of entrepreneur. It's a, you can say that it is a synonym to businessman, बट ऑन्टरप्रॉनर होता है जो खुद का अपना एक एंटरप्राइज खड़ा कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है. एंड फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स Indian government has tried to give more importance to these startups, to these enterprises, by providing them various kinds of assistance. In the last class we had learnt about these assistants only, that if we are starting up a company in our country, means if we are starting up an enterprise, this was started by Narendra Modi, Dr. Shri Narendra Modi, and उन्होंने इसका नाम दिया था स्टार्टअप इंडिया. The Startup India is a flagship initiative and it was launched on January 16, 2016. और उनका मानना है कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए मतलब कि हमारे दोस्त यंगस्टर्स या फिर दोज हु आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, उनको स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? दिक्कत नहीं आती है इफ योर बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड, मतलब उस वक्त में आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं दैट वुड बी डेफिनेटली different. But when you are setting up your business, at that point you really require somebody to guide you, somebody to mentor you, somebody who can give wings to your ideas, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, आपको गाइडेंस दे, आपको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज दे, आपको ये बताए कि गवर्नमेंट के अंदर ऐसे कौन कौन से स्कीम्स हैं. सो दीज इस इन्हीं चीजों को रखते हुए द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड दिस स्टार्टअप इंडिया स्कीम. इसके अंदर दे हैव गिवन स्पेशल इम्पोर्टेंस टू विमेन सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, इनके लिए भी दे हैव ऑल्सो गिवन सर्टन benefits. Then in the last class we had also learned what are the ways to boost up a startup. In starting में जो हमें financial support, mentorship, guidance की जरूरत होती है, तो वो हम कैसे करते हैं? And that we learned bootstrapping. Bootstrapping का मतलब होता है the very first initiative that we are taking, that is using our own finances. Self finance जो हम कहते हैं, उसको हम in another name we also call it as bootstrapping. This was the first one we have learned. The second is crowdfunding. इसके कुछ नुकसान भी है, but the second one is crowdfunding. In the crowdfunding we initiate people through various medias to support us in our company. इसमें उन लोगों को कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, it's just a help that we seek from the local people, local citizens. The third is angel investment. Some private people may invest in our company, they may give us back end support. Venture capital, यानी कि जो आपके प्रोफेशनली मैनेज फंड्स हैं वो यहां लगाया जाता है. Business incubators, there are special business incubators, यानी कि आपके बिजनेस को सेटअप होने तक वो पुश करने में आपको हेल्प करते हैं. देन वी ऑल्सो हैव माइक्रो फाइनेंसेस एंड नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग corporations which helps us to finance in the initial period. फिर हमने पढ़ा था सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि when you are
having your own venture, आपने खुद स्टार्ट किया है, you have started off it on your own, but there might be a time when people may try to steal it, आपके जो प्रॉपर्टी है उसको स्टील करने की कोशिश करें, मीन्स आपके इनोवेशन को. टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर things, the government has also started with the legal rights which is called as IPR, that is intellectual property rights. Intellectual means your creation. This is not a physical property but this is the creation that you have done. आपने जो चीज बनाई है, जो इनोवेट किया है, उसको कुछ लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. एंड दिस IPR इज गिवन टू अस. ये जो लीगल राइट्स है वो हमें अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं. दे आर गिवन टू अस थ्रू डेफिनेट. हम अपने IPR को वी कैन रेंट, वी कैन सेल इट आउट. मतलब अगर मैंने एक चीज को इनोवेट किया है एंड आई हैव ऑलरेडी, मतलब मैं अपना जो है आई एम मैन्युफैक्चरिंग, बट टुमारो आई डोंट वांट टू, और आई वॉन्ट मोर पीपल टू, मैं उसको रेंट कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपका कोको कोला, कोको कोला की जो ओरिजिनल कंपनी है दैट्स इन US, बट दे गिव देयर, जो उनका ट्रेडमार्क होता है, दे गिव अस, एंड उसकी जो वो स्पेशल रेसिपी होती है, द वे दे मेक इट, दैट कैन नॉट बी शेयर. That's a huge amount of penalty. So they, only the person who enters, जो मालिक है, जो एंटर अंदर करता है, only those 2 or 3 people know that. But they sell those, अपने वो जो ट्रेडमार्क है उनके ट्रेडमार्क पर we can manufacture in our country. So we can rent it out, we can sell it out also. लेकिन बिना हमारे परमिशन के nobody can take it, and that is we get the legal protection. We may get trademark, we may get registered mark, RM, TM. मतलब अगर आप कोको कोला में देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ होता है, छोटा सा TM दिया होता है आपको. नाउ इसको हम डिवाइड करते हैं. दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, that is something which we are making the tangible, and copyrights for the literature, music, artistic works, आपके ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर्स, इन सब के लिए हमारा कॉपीराइट होता है. यानी कि यू कैन नॉट कॉपी इट. यू कैन यूज इट बट यू कैन नॉट यूज इट एज योर ओन. अपना आप नहीं कर सकते, otherwise you would be sued, you can be sued. एंड इंडस्ट्रियल आपके हो जाता है जिसके अंदर आपका आता है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, डिजाइन्स, आपके जैसे आपके कार वगैरह के जो डिजाइन्स होते हैं, एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड ऑल ऑफ देम. नाउ सबसे पहले हमारा आता है व्हाट इज ट्रेडिशनल नॉलेज. मतलब हमारे इसके अंदर कॉपीराइट्स, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में देर आर सम ट्रेडिशनल फूड like turmeric. Turmeric is used in many of the items. It is extracted, इसको जो है extract किया जाता है, and then it is later on shared. तो हम यूज करते हैं टर्मरिक को for medicinal purpose, and then we are using ashwagandha, then we have some योगा प्रैक्टिसेस. ये सब आपके ट्रेडिशनल नॉलेज में आ जाते हैं. कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आपके जो है दे आर गिवन. और ये जो ट्रेडिशनल है जो बहुत सालों से हमारे यहाँ चल रहा है, बिकॉज US के ऊपर जो है देर वॉज वन केस ऑल्सो कि हम लोग टर्मरिक हमारे यहाँ पर लिया जाता है बट दे यूज इट अंडर देयर ओन नेम.
सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन प्रॉपर्टीज को जो हो बचाएं, कि आपने उसे बनाया है, you have invented it, you have discovered it, it is your innovation, so you need to protect them legally. So how do we protect it? क्या मतलब कि किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं? दैट मीन्स अगर आपने कोई चीज को बनाई है विच इज एक्सक्लूसिवली योर्स, देन इट इज योर परमिशन दैट अदर्स कैन यूज इट और नॉट. लाइक आपने सुना होगा हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी के फादर, he had written the very famous मधुशाला, मतलब many other poems but मधुशाला is one of them. उसको there is a copyright, nobody can take even a single line from that, और अगर वो करते हैं तो they have to pay some money to the creator. एंड ऑल्सो उनकी जो बुक्स बिकती है ना, जो बुक्स आपकी बिकती हैं उसकी लॉयल्टी जाती है उनके घर. So that is why it helps the authors, the innovators, the creators to get recognition for their work. In our country, we have Trademark Act. Means if you want to protect your particular product, आप now what is trademark? आपने देखा होगा प्यूमा में एक टाइगर सा बना होता है. दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी मेक अ प्रोडक्ट, हमको भी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड देते हैं, मतलब उसको एक नाम देते हैं. लेटर ऑन अगर वो प्रोडक्ट चल गया, मीन्स इफ दैट प्रोडक्ट इज इन द मार्केट, एग्जाम्पल मैगी, एग्जाम्पल मैगी, मैगी आपका जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले, नेस्ले का है वो. एंड मैगी उनका वो ब्रांड है जिसके अंदर उन्होंने खाने की चीजों को निकाला है. इट स्टार्टेड विद द नूडल्स बट टुडे मैगी इज हैविंग एम्पल प्रोडक्ट्स. आपके जो है उसके मसाला भी है, देन दे हैव द सॉसेस आल्सो, है ना. तो जो मैगी है दैट इज अ ब्रांड नेम. बट अगर उनको वो प्रोटेक्शन मिल जाता है दैट नो अदर पर्सन कैन यूज दिस नेम इन देयर प्रोडक्ट, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस, तो मैगी को टीएम मिल जाता, दैट इज अ ट्रेडमार्क. एंड ऑन देयर लेबल दे हैव टू मेंशन कि ये उनका ट्रेडमार्क है. दिस इज द लीगल प्रोटेक्शन दैट इज गिवन टू दैट नेम. समटाइम्स इट इज अ नेम, समटाइम्स इट मे बी अ पिक्चर, जैसे आपका प्यूमा में वो जो पिक्चर बनी हुई है बीइंग ह्यूमन में, वो एक ऐसा बना होता है, दैट इज ऑल देयर brand mark. Sometimes it may be a brand name and when it is given the legal protection it becomes trademark. There are some मतलब आपके जैसे कि आपका दार्जिलिंग चाय, द नेम ऑफ दार्जिलिंग इज कमिंग देयर, तो इनको हम कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड दीज ऑल कम्स इन योर एमसीक्यूज और मैच द कॉलम. दिस इज ऑल्सो देयर, हमारे यहाँ पे जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट इज देयर. देन आपका डिजाइन, एनीथिंग विच यू हैव क्रिएटेड ऑन योर ओन, जैसे लोगोज हमारे बनाए जाते हैं, डिजाइन एक्ट. एंड अभी मैं रिसेंटली आई वाज टेलिंग, मतलब लास्ट क्लास ओनली आई टोल्ड माय रियल कजिन्स हस्बैंड, ही हैज स्टार्टेड द डिजाइनिंग स्टूडियो, not in India but he has started abroad, but that design studio creates designs. आपने देखोगे ना बिस्कुट के ऊपर डिजाइन बने होते हैं, ये सारे जो डिजाइन बने होते हैं दे आर ऑल प्रोटेक्टेड अंडर द डिजाइन एक्ट. देन आपकी जो अलग अलग प्लांट वेराइटीज हैं जिनको आपका जो है ट्रेडिशनल के अंदर आता है, जैसे टर्मरिक है आपका, अश्वगंधा है आपका, देन हिमालयन यू है, इनको भी आपके दे ऑल्सो गेट द प्रोटेक्शन. Patent, when you are creating your own formula and
last but not the least is the copyright, which is for exclusively for the for the artistic novel author. जब हम लोग बुक लिखते हैं ना, आपको पता है, when we are writing the book, तो हमें बताया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी बीएसटी के बुक्स लिखती हूँ, तो हमें स्पेसिफिकली बताया जाता है कि आप दूसरी बुक को आप यू कैन यूज इट, यू कैन यूज इट, बट यू शुड नॉट। हम सिर्फ जो है सीबीएसई के जो पेपर्स आए होते हैं या केवी में जो पेपर्स आए होते हैं उनको हम लेते हैं। एंड इवन इफ इट इज टेकन, उसमें साइड में लिखा होता है केवी कंपार्टमेंट पेपर सीबीएसई, मतलब कि बोर्ड एग्जाम पेपर 2012, आपने देखा होगा वो मेंशन होता है। यू मस्ट हैव सीन दैट, दैट इज कॉपीराइट। यू कैन नॉट से दैट वो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। आप उसको देखकर खुद यू कैन claim it, but you cannot say that that is my question. So that is where the copyright comes. Next हमारा आता है ट्रेड सीक्रेट्स, जो मैंने अभी आपको कोको कोला का बताया था, that's called as a trade secret. That is, we do not know publicly. It is said, I don't know, but many of my known to people, they tell me this thing. वो लोग मुझे बताते हैं that Coca-Cola does not allow, Coca-Cola does not allow, even their own employees do not know what is the secret formula. There is a room when they have to go, तो सिर्फ जो उनके ओनर्स हैं, एंड लास्ट टाइम व्हेन माय स्टूडेंट्स वर स्टडिंग, सो दे टोल्ड मी कि मैम मान लो ओनर नहीं है तो फिर, सो देयर आर सर्टेन लीगल प्रोटेक्शन। जैसे रेसिपीज आपके हो गए, अगर आप देखोगे ना, if you eat in any restaurant, if you eat in any restaurant, yeah, of course, I'll tell you this also, I'll tell you, yes, KFC is there, this आपका जो मैकडोनाल्ड है, इन सब के है, they all have their secret recipes। क्या जो आप if you look into the McDonald's burger, you will not find that sauce anywhere in the market। वो जो उनका वो जो अलग सा सॉस होता है, that's not available, that's not available openly in the market। Maybe now people have tried those formulas, but it is not available, so that's a trade secret। रेसिपीज होती हैं, कभी भी हलवाई अपनी पूरी रेसिपी कभी नहीं बताता, you know। So there are certain recipes, some computer programming हो सकता है, so there are some trade secrets which they may not tell, because that only helps them to survive। आप पेप्सी और कोको कोला एंड थम्स अप में देखो, व्हाई देयर इज डिफरेंस, तीनों है तो कोला ही ना, बट देयर इज ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन अमंग ऑल द थ्री, सो दैट्स इट। Now, where do we use copyrights? I have already told you this. Books, novels, songs, जो सॉन्ग्स के लिरिक्स होते हैं, अगर आप देखोगे ना तो इस पे यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ पीपल हैविंग फाइट्स, बिकॉज कई बार लिरिसिस्ट कहते हैं कि हमने तो अपना गाना जो है उनको दिया था प्रोड्यूसर को, एंड दे हैव यूज्ड इट themselves। But if you have the original work and if you can claim that it is your original work, then you can definitely sue, और आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाता, millions of। But yes, you have to be very careful, your drawings, your paintings, your logos, your architectural drawings, musical work, cinematography, filmography, sound recordings, डांस के जो आपके स्टेप्स होते हैं, स्क्रीन प्ले, इफ यू लुक इनटू द कोरियोग्राफी ऑफ टू डिफरेंट पीपल, इट विल बी डिफरेंट। सो यू कैन प्रोटेक्ट योर, मतलब जैसे उनको कहते हैं ना सिग्नेचर स्टेप्स बोलते हैं हम लोग उनको, सो यू कैन प्रोटेक्ट योर आर्टिस्टिक वे, मतलब कि जो आपका आर्टिस्टिक इनोवेशन है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो विद कॉपीराइट। एंड दैट इज व्हाई इन आई हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन,
that in your books you will find its copyright, आपको लिखा हुआ मिलेगा. You cannot publish it as yours. Now, as I said, trademark. Ma'am, Yeah. ma'am, as in YouTube, we have seen that when the people use a different artist's work, so then they mention something like under the copyright act Yes, of they have to. that If you look into the movie, the fair use of this is like possible. yeah. But then again, they are violating the law in kind of. So, Yes, like, of course, if they come how do into they the, justify them? yeah, see, if they come into the picture, if they are caught, I'll show you one thing. I'll share this with you. No part of this book may be reproduced or copy. यहाँ पे लिखा होता है trademarks acknowledged. तो if any part is found, see अब definitely language में तो हम बहुत ज़्यादा change नहीं कर सकते. Like CBSE कहता है कि आपको NCERT language पे confine करना है, तो we have to use a NCERT. But जो हम उसमें examples देते हैं, some of them आपने देखा होगा नीचे लिखा होता है source करके लिखा हुआ होता है. So we have to mention that it is exactly. And when we are using the work of any private publisher, then we need to pay him some loyalty कि हम आपकी चीज को use कर रहे हैं. And if you are not doing it, then definitely you are into the legal trouble. Right? So I have already discussed what is trademark, that legal protection that is given. जैसे आपके कोको कोला के बॉटल पे लिखा होता है, या फिर आपके जो HMT, मतलब कोई भी चीज आप देखोगे ब्रांडेड, तो दे हैव अ ट्रेडमार्क ऑन दैट. यू कैन सी ipindia.com, जिसमें आप ट्रेडमार्क अपने रजिस्टर कर सकते हो. Now comes the geographical indications. They are means जो ओरिजिनेट करते हैं उस टेरिटरी में. दे ओरिजिनेट इन दैट जोग्राफिकल लोकेशन, और हम उसको जो है यूज कर सकते हैं. मतलब इट इज ओनली फॉर एट्रीब्यूटिंग दैट जोग्राफिकल एरिया. इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं. नोबडी एल्स, मतलब आपकी चाय कहीं पर भी बन रही हो और आप कह रही हो दार्जिलिंग चाय है, टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर फूड स्टफ, इंडस्ट्रियल स्टफ, जैसे तेजपुर लिची, दार्जिलिंग चाय, बनारस ब्रोकेट्स साड़ी जो आपकी आती है, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, मकराना मार्बल. मकराना आपका आगरा के पास है, एंड दैट इज वेरी फेमस फॉर द वाइट मार्बल्स. एंड इट इज सेड जो आपका ताजमहल था उसके लिए भी जो मार्बल्स है वहीं से आए थे. देन आपका जो है बासमती राइस, धारवाड़ पेड़ा, कश्मीरी पश्मीना, नागपुर ऑरेंज. सो दिस इज, मतलब बिकॉज दैट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एरिया. आपने देखा हो तो उनको रत्नागिरी आम, इट्स वेरी फेमस. मतलब तो दे आर गिवन दैट जोग्राफिकल इंडिकेशन, एंड इट शोज दैट इट इज basically geographically indigenously born there. And basically it is for the handicrafts, agricultural products. आपका पश्मीना बोलते हैं, हमें पता है वो कश्मीर को बिलोंग करता है. इंडस्ट्रियल गुड्स, इनके लिए हम यूज करते हैं. दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन. द नेम विल बी रिटन, आगे आपका नाम लिखा हुआ होता है. असम चाय. पेटेंट, this is one of the most important, and this is for the scientific innovations, जो हमारे साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, और इन्हीं पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है. सबसे ज्यादा जो लड़ाई होती है ना वो पेटेंट्स पे होती है. मूवीज में भी दिखाते रहते हैं. वो मिस्टर इंडिया वाली जो मूवी थी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड. हैज एनीवन वॉच्ड दैट फ्रॉम योर ग्रुप? Yes, ma'am. दैट क्यों? क्योंकि दैट इज द एक्सक्लूसिव राइट granted by the government. It's granted by the government.
and they can manufacture that प्रोडक्ट अंडर दैट फॉर्मूला. वो लोग उस फॉर्मूला के अंडर जो है उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ पेटेंट हेल्प्स इन. और पेटेंट हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज व्हेन वी आर हैविंग द इन्वेंशंस मेनी पीपल ट्राई टू, इवन इट इज बहुत सारे, अगर आप साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि देयर वर पीपल हु वर यू नो accused of stealing the patents. How do we obtain patents? आप patents को कैसे obtain करते हो? And what can be patented? आप किस किस चीज को पेटेंट कर सकते हो? Scientific principles which should not be contrary. मतलब आप बॉम्ब बनाने के लिए भी ऐसा नहीं हो कि आप टेररिस्ट हो और आप बॉम्ब बना रहे हो, आप कह रहे हो उसका पेटेंट दे दो, तो दैट इज नॉट. इवन व्हेन वी आर मेकिंग द न्यूक्लियर वेपन्स, उसके लिए भी वी नीड द पेटेंट. No invention which is contrary, it can be patented. It should not be something which is against the morality. कोई भी मेथड आपने नया एग्रीकल्चर का इन्वेंट किया है, लाइक देन आपका हाइब्रिड जो है, व्हेन इट वाज हाइब्रिड का किया था, सो अ प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिड, तो उसे कैसे उन्होंने किया था. सम ऑफ द कंपनीज हैव गॉट द पेटेंट्स. There are many celebrities who have got these patents. वो लोग उसे कैसे grow करते हैं, they don't share that. And if they share, they charge. The surgery, heart की जो surgery होती है, that can be patented. Any mathematical method. So anything which is a new innovation which can help in the development or economy or even in the general perspective, that can be patented. But first of all, you have to set up that standard. The person who is asking for the patent should be skilled, like scientist अपना जो formulas होता है उसको वो लोग पेटेंट करते हैं. एंड सिर्फ पेटेंट का फायदा नहीं है, आपको पेटेंट का फायदा तब है when it is going to help you in the industrial production. Like आपका vaccine, there are 2 patents like Covaxin and Covishield. So they have been given this patent right. क्यों बाकी कंपनीज अभी उन्हें क्यों नहीं कर रही है? Because they haven't yet got those. If the company sells it out to another company, अपने पेटेंट को वो सेल करती है या फिर वो रेंट आउट करती है, तो अदर कंपनीज कैन ऑल्सो मैन्युफैक्चर इट. आपने देखा होगा दवाई होती है क्रोसिन, उसके अलग अलग नाम होते हैं. आपके जो दवाइयां हैं है तो वो क्रोसिन है ना, हम उसको क्रोसिन भी कहते हैं, हम उसको पैरासिटामोल भी कहते हैं, हम उसको आई थिंक एक और भी नाम है उससे भी कहते हैं. मतलब देयर आर 3 or 4 नेम्स. अगर आप मेडिसिन का अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो मोर और लेस दे आर सेम. कॉम्बीफ्लैम द इन्फ्लेमेशन के लिए जो यूज होता है, मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग द सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला, बट उसको अलग नेम दिया जाता है, बट उसका जो फॉर्मूला होता है वो पेटेंट हो जाता है. सो दैट कंपनी which has the person who has invented, उसको वो पेटेंट राइट मिलता है. he can sell out his patent to anybody in the world. इंडिया में बहुत सारे ऐसे पेटेंट्स हैं जिनको लोग मतलब कि इनोवेट करते हैं एंड लेटर ऑन दे सेल इट टू फॉरेन कंट्रीज because they earn money, because they get money. It's very simple. Next is design. Any shape, pattern. अभी मैं आपको बता रही थी जैसे if you want to manufacture something तो definitely आपको packaging की ज़रूरत होती है. So when you are making the packaging तो आपको कुछ shapes, कुछ pattern की ज़रूरत होती है. So some designing is there. Then आपके जो ये कपड़े होते हैं, आपने देखा होगा in the articles you must have studied about the designs. ये मनीष मल्होत्रा का ड्रेस पहन रखा है, इसका नाम क्या है वो
सारा खान इज वेयरिंग मनीष मल्होत्रा's ड्रेस फॉर 1.5 लाख, ऐसे करके वो दिया जाता। तो व्हेन द पर्सन हु इज मेकिंग दैट डिजाइन, या उसकी कंपनी उसको बना रही है, तो दैट डिजाइन गेट्स द प्रोटेक्शन, and all these fashion designers, they get the protection if they are having their own brand, and if they have sold it to some company, the company uses it, and a fashion designer can sell his design to more than one company. एक कंपनी मनीष मल्होत्रा का भी डिजाइन यूज करेगी, दूसरे डिजाइनर का भी यूज करेगी, he or she can use any number of, and this I also came to know, and but ये जो डिजाइन का प्रोटेक्शन होता है, दिस इज फॉर 10 years, एंड 5 years हम जो है मतलब इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। For example, this also I came to know when my daughter was in, well, she's from the fashion designing only, but she's into masters of fashion management. So during her internship, she was working with some of the major companies. She came to know कि उनके जो ये जो मतलब कि मनीष मल्होत्रा वगैरह जो है, दे यूज टू कम ओवर देयर। मुझे तो उस वक्त में बड़ा मतलब, फॉर मी इट वाज लाइक वाओ, इट्स वाज लाइक दैट। शी यूज टू टेल मम्मी ईशा देओल आई थी, हेमा मालिनी, शी विल शो दैट। मैं कहती थी वाओ, वो कहती मम्मी कुछ नहीं है, दे आर ऑल वेरी वेरी रूड। तो शी यूज टू टेल मी, तब वो ये लोग जो जब पेटेंट्स को सेल करते हैं, तो ये जो फैशन ये जो दिखाते हैं रैम्प वॉकिंग, ये यही तो होता है। दे शो दैट दे हैव डिजाइंड दीज, और जिन कंपनीज को वो पसंद आ जाता है, वो कंपनीज पैसा देकर उस डिजाइन को अपने पास ले आती है। देन दैट डिजाइन कम्स इनटू द मार्केट। सो दैट कैन बी फॉर क्लोथ्स, दैट कैन बी फॉर एनीथिंग, जिसमें भी आपका पैटर्न है, जिसमें भी आपके जो है शेप्स हैं, उन सब के लिए आते हैं। Once what happened is, one of her friend, she's a very very dedicated designer, because she is not into designing, she is into something else, she is into management. So she had some designs and she had gone for an interview, she had gone for some interview। वहां जब इंटरव्यू में गई वो, शी इज वेरी सिंपल, लाइक मैं कह सकती हूँ बहुत सिंपल है वो। उसके फोन को छीन लिया, शी कुडंट अंडरस्टैंड। उसको सिर्फ यही बोला कि आप ये फोन के डिजाइन है ना, हमें अंदर दिखाना, और फोन ले लिया। उसने भी ध्यान नहीं किया। लेटर ऑन इमीडिएटली विद इन 10 minutes दे कॉल द पुलिस, एंड उन्होंने कहा कि ये जो डिजाइन है ये ओरिजिनल हमारे हैं। नाउ वो जो लड़की थी, एक्चुअली शी वॉज रिप्रेजेंटिंग हर कंपनी। अब उसे क्या पता था कि उसकी कंपनी ने किसी और का चुराया हुआ था। You won't imagine that girl has been blacklisted from all the companies, उसको कहीं नौकरी नहीं मिली, कहीं नौकरी नहीं मिली। देन उसने केस डाला कि भाई मेरी मेरी अपनी डिजाइन नहीं है, दिस इज आई एम वर्किंग फॉर सम कंपनी, एंड इट वाज माय कंपनी जिन्होंने मुझे ये चीज दी है। देयरफॉर शी वाज उसके बाद उसके ऊपर से वो केस तो हट गया, लेकिन दैट वाज वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर हर। इनफैक्ट इट इज अभी अभी फरवरी में ही हुआ था ये सब कुछ। So you need to protect your designs, whether it is clothing, whether it is something else, कुछ भी जहाँ पर आपके पैटर्न्स वगैरह चलते हैं। इवन आजकल तो हर चीज में ब्रांड आपका चलता है, तो यू हैव टू, तो ये डिजाइनिंग आपका जो है दैट्स गिवन, बट इट इज फॉर अ पीरियड। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉरी, द नेक्स्ट वन इज प्लांट वेराइटी, जिसको हम प्लांट ब्रीडर भी कहते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका चल रहा है। इन देहरादून, आपके जो देहरादून है, वहां पर वी हैव द एग्रीकल्चरल सेंटर आपका है, तो हाइब्रिड ऑफ पोटैटोस जो आपके, तो दे प्रमोट कि भाई न्यू तरीके से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, द फेमस सेलिब्रिटी धोनी जी,
ही इज हैविंग अ वेरी लार्ज ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड उनका जितना भी फार्म है वो सब कुछ दुबई मतलब कि एक्सपोर्ट होता है. सो दे, अगर मतलब कि दे आर मेकिंग सम जेनेटिक बना रहे हैं यूजिंग, तो उसमें जो है दे गेट द, उनको जो है दे गेट द प्रोटेक्शन. अगर दे आर trying to breed a new plant variety based on their botanical features, some HYV सीड्स आपके हो गए, प्लांटिंग मटेरियल्स हो गए, इसमें आपकी जो सीड ग्रोथ होता है वो, तो दैट्स गिवन. नेक्स्ट आपका आता है, दैट इज द लास्ट वन, दैट इज सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइंस. जितने भी आपके इंसुलेशन होते हैं, लाइक आपका दिस हीटर, आपके आयरन, गीजर्स, ये आपका इंडस्ट्रियल मटेरियल होता है. सो जो आपका लेआउट होता है, जो इंटीग्रेट आपका जो बना हुआ होता है, जो उसका एक डिजाइन होता है. फॉर द ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो इट इज देयर. ऑटोमोबाइल का भी आपका होता है, जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के बच्चे होते हैं वो यही तो बनाते हैं. दे ट्राई टू मेक, आर्किटेक्चरल बच्चे जो होते हैं वो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बट दैट कम्स अंडर द कॉपीराइट बिकॉज दैट्स अ डिजाइन. ये जो आपका सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड है, ट्रांजिस्टर्स को कैसे आपने देखा होगा, अगर टीवी के ट्रांजिस्टर्स अगर आपने देखो, छोटे 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 सेमीकंडक्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स होते हैं इतने इतने से, उनको कैसे लेआउट करना है, उसमें कैसे वायर को डालना है, वो जो लेआउट वो लोग बनाते हैं, that also gets a legal protection. That's also there. So these are the acts and the protection that we get from government of India if we are innovating our products. हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था एमएसएमई, उसके अंदर तो सब कुछ आ जाता है. इट इज इनफैक्ट आई बीन टेलिंग अगेन एंड अगेन कि वो एक तरह से आप कह सकते हो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करना है. स्कैटर्ड आपके जो है, दैट कैन बी द वीवर्स, दैट कैन बी द कॉपरेटिव्स, उनको एक साथ लेकर आना. एक बड़ी कंपनी अपने नीचे 6 या 7 छोटी छोटी कंपनीज रखती है, उनको एमएसएमई के अंडर डाल दिया है. पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है डायरेक्टली वीवर से काम करवाती थी. दे सर्टन टाइम्स में एक्सप्लॉइट देम, सर्टन टाइम्स दे में एक्सप्लॉइट देम, बट अब एमएसएमई के अंडर आने से क्या होता है कि वो एक प्रॉपर फैक्ट्री का सेटअप दे देते हैं. वेयर एज आपका स्टार्टअप जो है, दैट इज समथिंग गिविंग a push to your own innovations. So when ये जितनी बड़ी companies हैं, they also use all these trademark act, ये जो जितने मैंने लिखे हैं, design act, copyright act, ये सब कुछ use करते हैं. But these are the protections that are given to the startups also, ताकि आगे कोई बड़ी कंपनी आप जो है इनको exploit ना करे. अगर शुरू से आप अपने उसका नाम क्या, अपनी चीजों पर पूरा का पूरा पेटेंट लेकर रख रहे हो, तो nobody can take that. You are taking the protection, nobody can take it. लेने वाले तब भी लेते हैं, ये बात नहीं है. डोंट थिंक दैट मैम, क्या मतलब कि आप कैसे बोल सकते हो. मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिखाया था, वो जो अमूल और उसका, द सेम टाइप ऑफ गर्ल हैज बीन मेड, बट इफ यू आर कॉट देन द पेनल्टी इज टू मच. और नॉर्मली क्या होता है ना, बहुत जो मतलब कि बिल्कुल जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता ना, नॉर्मली दे ट्राई टू कॉपी आउट. बट व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग, यू आर वेरी पर्टिकुलर दैट आप एक वर्ड भी कॉपी नहीं करते. सो दैट्स हाउ प्रोटेक्शन हेल्प्स यू. येट ये तो हमारा था चैप्टर स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस. देयर आर सम एक्स्ट्रा मटेरियल, लाइक क्या स्मॉल बिजनेस ओपन करना इतना आसान है? डू दी स्मॉल बिजनेस ऑल्सो फेस सम प्रॉब्लम? यस. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पर आती है वो होती है फाइनेंस की. वी हैव नेबार्ड, वी हैव सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आईडीबीआई है वैसे सिडबी है. वी हैव RWED, दैट इज रूरल एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी है आपके पास. वी हैव डिक्स, उस दिन पढ़ा था हमने, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. वी हैव नेशनल लेवल,
We have World Association of Small and Medium Enterprise, that is WASME, Sfurti, Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industry. Yet फाइनेंस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों को इन स्कीम्स को कैसे लेना है वो नहीं पता होता है. देन समटाइम्स पेमेंट में बी डिलेड. एंड बैंक्स जो होते हैं नॉर्मली ऐसी कंपनीज को, ऐसे जो छोटे मतलब की होते हैं, इनको इमीडिएट लोन्स नहीं देते. यस, दिस इज वन ऑफ द रीजन. सो दे डोंट गिव ऑल्सो. और कभी कभी इफ दे आर, उनके स्टॉक्स अगर अनसोल्ड हो तो दे मे रन इनटू ट्रबल. रॉ मटेरियल्स, एक बड़ी कंपनी जो होती है दैट कैन बाय द रॉ मटेरियल्स, एंड नॉर्मली क्या होता है, दे हैव द बिड, वो लोग बिडिंग करते हैं और फटाफट ले लेते हैं. छोटी कंपनीज को ये प्रॉब्लम्स आती है. दे समटाइम्स दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी बिकॉज दे मे नॉट बी गेटिंग. उनको तो लेना है, उनका बार्गेनिंग पावर कम होता है एंड उनको लेना भी कम होता है. एक बड़ी कंपनी जो है, से टू कंपनीज, मतलब कि दो बिजनेस है, एक छोटा बिजनेस है और एक बड़ा है, तो बड़ा बिजनेस जो है दैट विल बी टेकिंग इन बल्क, उनको सस्ता पड़ता है. व्हेन यू आर बाइंग अ बुक, जब आप लोग बुक खरीदते हो, यही आपको जो सुभाष दे की, मतलब कि किसी भी मतलब कि राइटर की जो बुक होती है, दैट यू गेट, थोड़ा आपको ज्यादा मिलता है. बट व्हेन यू आर बाइंग थ्रू एनी टीचर और थ्रू द डायरेक्ट, तो आपको कम पड़ता है. व्हेन यू आर बाइंग इन बल्क, बल्क में खरीदते हो 1000, तो आपको जो है बहुत कम पैसा देना पड़ता है. बट अगर आप सिंगल खरीदोगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है. द सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल इज फॉर द बिगर कंपनीज एंड द स्मॉल स्टार्टअप्स, क्योंकि उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं वो इतना नहीं होता. मैनेजरियल स्किल्स in large companies, you can easily rope up a person from IIM. चलो भाई कैंपस प्लेसमेंट करो, सीधा जो बेस्ट मतलब कि कैंडिडेट है उसको उठा के लेकर आओ. चलो आईआईएम नहीं है तो सिम्बियोसिस पे चले जाओ, सिम्बियोसिस नहीं है तो जो आईएमटी है उस पे चले जाओ. लेकिन छोटी कंपनीज कहाँ जाएंगी? क्योंकि जो अब आप भी एमबीए करोगे तो आप क्यों कहोगे कि मैं स्टार्टअप में जाके काम करूंगा? यू विल नॉट वर्क इन अ स्टार्टअप. यू विल डेफिनेटली से कि मैम मुझे एक अच्छी कंपनी में चाहिए. माई स्टूडेंट प्रशांत, ही इज विद डेलॉइट. लेकिन एक और बच्ची है, शी कंप्लीटेड इट फ्रॉम विवेकानंद, दैट इज फ्रॉम आईपी, शी इज वर्किंग फॉर अ स्टार्टअप. तो प्रशांत स्टार्टअप में क्यों काम करेगा? तो मैनेजरल स्किल्स जो होते हैं वो काफी कम होते हैं. एंड अगर ऑन्टरप्रॉनर अकेला मैनेज कर रहा है, he or she may have some technical knowledge but not the entire. And this I can very well relate with myself also. When I started off with my this institute in Dilshad Garden, starting में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था. मैं बहुत खुल के बोल रही हूँ, और आप लोगों के साथ बोलते हुए तो मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे सारे ग्रुप में से सबसे बेस्ट ग्रुप आप लोगों का है. मुझे कभी किसी को नहीं बोलना पड़ता कि मुझे फीस दे दो. और स्टार्टिंग में बच्चे बड़ा मुझे बुद्धू बनाते थे, एंड मैं भी यही सोचती थी, I'm a टीचर. अब टीचर हूँ वो तो ठीक है, बट अगर इंस्टीट्यूट हो तो उसे मैनेज भी करना पड़ता है, उसका रेंट और उसका वो तो मुझे देना ही पड़ता है ना. वेदर आई एम रनिंग इन टू लॉस और नॉट, आई हैव टू पे. और शुरू में तो मुझे पता ही नहीं लगता था. देन व्हेन आई डिड माय मास्टर, मैंने एमबीए तो तभी किया था 12 years बैक. बिलीव मी, व्हेन आई डिड इट ना, मुझे समझ आया कि मैं कितनी जगहों पर आई एम इन लॉस. देन आई परचेज माई ओन प्रिंटर, मैंने अपना प्रिंटर लगाया. फिर मुझे मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों में मुझे पता लगा कि हाउ आई कैन सेव माई कॉस्ट, हाउ आई कैन ensure better quality. अपार्ट फ्रॉम टीचिंग में मैं सिर्फ इसी उस तरफ में रहती थी, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग, बस. और मुझे वो जो पीछे की चीजें होती थी वो पता नहीं होता था. दैट आई केम टू नो दैट कैसे मैनेज करना होता है चीजों को. एंड
व्हेन यू आर रनिंग अ कंपनी, उसमें तो पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें होती है। तो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जहाँ आप यू आर पर्सनली टीचिंग, जहाँ आप कंपनीज में वर्कर्स को देख रहे हो, जहाँ आप यू आर हैविंग कोऑर्डिनेशन विद लाइजनिंग विद द पीपल, गवर्नमेंट से आपको लेना है, यू मस्ट हैव द मैनेजरियल स्किल्स। यू मे हैव द टेक्निकल नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट बट नॉट द मैनेजरियल स्किल्स। ये एक माइनस पॉइंट होता है। मार्केटिंग, बड़ी कंपनीज they just spend money in sponsoring the events. They can advertise on any prime time, बट छोटी कंपनीज कहां से करेंगी? यू मस्ट हैव यू एवर हर्ड, आप नेस्ले के मैगी का देख सकते हो, इवन पतंजलि आजकल इट इज नॉट गिविंग द एडवर्टाइजमेंट्स, बट यू कैन नॉट सी द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ स्मॉल स्टार्टअप्स। हाँ, उनके एडवर्टाइजमेंट्स आपको इंस्टा पर, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर, या फिर ऐसे जो आपके सोशल मीडियाज होते हैं जहां फ्री कर सकते हो, वहां आपको मिल जाएगा। इवन देयर ऑल्सो यू हैव द पेड अप। मैंने अपने पेज के लिए अभी पेड अप किया, मैंने इन ऑन इंस्टा पेड इट। तो बट ये है कि हाँ, दैट इज विद इन द रीच, बट बड़ी कंपनीज दे कैन मार्केट एम्पल ऑन द टीवी, मार्केटिंग नहीं होती आपकी। एंड मार्केटिंग जो है, इट इज नॉट ओनली एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग डज नॉट ओनली लिमिट टू एडवर्टाइजमेंट, इट इज ऑल्सो कि आप ये भी तो देखना है कि लोगों को क्या चाहिए, व्हाट पीपल वांट। मार्केटिंग स्टार्ट होता है फ्रॉम SWOT analysis, finding out the strengths, finding out the weakness, finding out the opportunity, the threat, what my prospective customer wants, designing the product, giving it a name, taking the legal protection and bringing it to the market. और ये पूरा जो चैनल होता है, this can be done only when you have good amount of finance, which small enterprises lack. Quality compromise, they cannot compete. फॉरेन टेक्नोलॉजी आपके हो गए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस आपके हो गए, विच इज देयर। कैपेसिटी, क्योंकि उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, मैंने जैसे बताया कि एक बड़ी कंपनी बल्क में खरीदती है, तो जो उनका कॉस्ट प्रोडक्शन होता है वो उनको कम पड़ता है। छोटी कंपनीज लिमिटेड लेती हैं, उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो दे कैन नॉट यूज अ कंप्लीट कैपेसिटी। एंड मार्केटिंग जो मैंने वर्ड बोला, उससे एक चीज सामने और आती है, और वो है द कंपटीशन इन द ग्लोब। टुडे आई डोंट वांट टू buy a product which is made in India, because I can easily buy a product which is made in any other country. मुझे उसी दाम में I can easily manage it, I can buy it, तो why should I buy a product which is lesser in quality? ये लोगों का एक क्वेश्चन होता है, it's a question, and this brings up the global competition. आज एक स्टार्टअप भी उतना ही कॉम्पिटिटिव है, एक और स्टार्टअप जो कि दूसरी कंट्री में है, विच इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग और गिविंग द सर्विसेज ऑफ द सेम काइंड, दे हैव टू compete at that level. So there are certain problems also, but yes, I can still say that now the position of the startups, MSMEs have definitely improved, which was not there 10 or 15 years back. आज थोड़ा सा अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, तो यू कैन डेफिनेटली टेक अप योर स्टार्टअप टू हाइट। आप अपने स्टार्टअप को एक बड़ी कंपनी का नाम दे सकते हो, if you have the entrepreneur. And that is why again and again I'm telling you, and this I'm telling you on a personal scale, not on the ground that I'm teaching you this particular chapter. Specifically मैं personally बता रही हूँ कि अगर आपके पास में, if you are having the entrepreneurship skills, then definitely
यू विल बी एबल टू, अगर मतलब सेकेंड जो आपका नेक्स्ट साल जो है, यू विल बी रीडिंग अबाउट मैनेजरियल स्किल्स, दैट इज आपका जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड है सब कुछ. सो इफ यू इन दोनों को आप मिला लेते हो, the entrepreneurship skills, your managerial skills, and then you are able to find out. आज ना मैं I was talking to one of my मतलब कल अंशिका, आपकी आपकी मम्मा से बात हो रही थी मेरी, तो I was telling that about her brother only, कि he really has that mind. कभी कभी ना बच्चों में हमें हमें लगता है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, मतलब हमें लगता है, but actually they have the mind, that you know, that curiosity mind. मैंने देखा है ऐसे बच्चों को जिनका दिमाग ऐसा चलता है. मेरे पास एक 12th में एक बच्चा है शुरू से, एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उसका नाम भी पहले आदित्य ही था, अब उसका नाम चेंज हो गया है. यू नो, बचपन से ही उसको ना दिमाग में था कि आई शुड गो समथिंग समवेयर इन द बिजनेस. और हम लोगों के दिमाग में क्या होता था, ही इज वेरी क्लोज टू अस, हमारे दिमाग में ये होता था कि यार उनके पापा का तो बिजनेस है ही है, तो इसलिए उसका दिमाग है. लेकिन आप मानोगे नहीं, वो ना अपने बिजनेस को इवन इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, द वे ही कुड एक्सपैंड हिज बिजनेस का जो वो बता सकता ना, वो हम नहीं बता सकते. एंड दैट इज अ माइंड, दैट माइंड हैज बीन क्रिएटेड मे बी बिकॉज उनके घर का माहौल ऐसा था. तो अगर हम 11th में 12th में इफ वी आर रीडिंग दीज थिंग्स, एंटरप्रेन्योरशिप, डोंट थिंक दैट आई एम अ गर्ल, नेवर थिंक. गर्ल्स आजकल विमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा है. नायका इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट. दो शी इज फ्रॉम IIM, बट येस फाल्गुनी, शी हैज. नायका में आपको मिलता क्या है, काजल. काजल को बनाने में कितना पैसा लगता है, द लोएस्ट कॉस्ट एंड द हाइएस्ट अर्नर. आपके जितने भी FMCGs हैं, या जितने आपके FMCGs हैं, all the fast moving goods, and today government is giving so many, you know, schemes for the women also. अगर आप नीति आयोग का, if you use a मतलब if you go to their site, you will find they are giving so many seminars, workshops, even there are certain small courses also you can take up using these skills जो हमने अभी पढ़े हैं, इनको रखकर. एंड यस, यू मस्ट, अगर आपका अपना इनोवेशन है तो यू मस्ट प्रोटेक्ट इट विथ प्रॉपर लीगल राइट्स एंड स्टार्टअप योर ओन बिजनेस इन द कमिंग ईयर्स. इट्स नॉट दैट कि आप 12th खत्म करते ही चलो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया. देयर इज नो नीड. यू कैन वर्क फॉर 3 or 4 years and then also you can go. Certain times it happens. जो my husband is in Dabar, as you all know. उनके ऑफिस के अंदर क्या है, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनेजिंग डायरेक्टर, ही वर्कड इन अ बैंक. he worked in a bank and in a normal position. he did not join this company सीधा कि हाँ भाई मेरा तो चलो, हम मतलब कि we even never knew कि वो एक ऐसा एक इंसान एग्जिस्ट करता है. Later on we came to know that yes, Gaurav Burman, he is matlab, and now he is into the board of directors mein, now he is one of the member, but he was living in US and he was having his own, क्योंकि उन्होंने पहले investment banking में अच्छे से he took the experience and then he started off. Similarly आपके जो नायका की जो भी है, she was from IIM, she worked with Kotak Mahindra and later on she has started, मतलब जब नायका स्टार्ट हुआ था आज से 7-8 years here, it was just a platform. It was just a platform and it also comes under the same schemes आपका. It is not a अभी ये कंपनी बना, but it started as a platform, moved towards LLC. LLC का मतलब होता है limited liability company. Then it moved towards a, so you all have that potentials, and in the future definitely you can also think on that ground using all these skills. So this is what we call as small business and entrepreneurship, right?